So good morning, all of you. Today discuss topic circles, exercise 10.5 from NCERT book. Question is: if the non-parallel side of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. Prove that it is cyclic. Very important question. First of all, draw a trapezium ABCD. हमने ट्रापेजियम ड्रॉ कर दिए, इसका नाम A, B, C and D, in which AB parallel to DC, in which AB parallel to DC. नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है जी. In which AB parallel to CD, लिख दो गिवन में ABCD is a trapezium AB parallel to BC. To prove non-parallel sides are equal. This is non-parallel side AB and BC, which are equal. Prove that it is cyclic. Cyclic means sum of opposite angles is 180 degree. Therefore, this trapezium lie on a circle. To prove फर्स्ट में या तो प्रूव कर दो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, या सेकेंड में आप प्रूव कर दीजिए एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री. एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री. अगर ऐसा प्रूव हो जाता है तो आप लिख सकते हो एक trapezium ABCD is a cyclic. Trapezium ABCD is a cyclic. ठीक है. अब आप एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करो. कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ हम यहां से एक AM और BM को परपेंडिकुलर ड्रॉ AL perpendicular to BC and BM perpendicular to BC. यहां से AL और यहां से BM. Voice is not clear. Net problem. ओके. क्योंकि हम तो 2 बार ऑफ करके इसको ऑन किए, फिर भी क्लियर नहीं आ पा रहा है. तो एक बार और ऑफ करके देख ही लेते क्या किया जाए. Draw AM perpendicular to DC and BM perpendicular to DC. Now, proof में आप first of all prove triangle ALD
कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMC और इस दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव करो इन ट्रायंगल ALD एंड ट्रायंगल BMC को देख लो ALD आपका ये ट्रायंगल है BMC ये ट्रायंगल है इस दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव करना है किस कन्वर्जेंसी रूल किस क्राइटेरिया से हम कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे तो एंगल L इज इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन सेकेंड opposite side of angle L is AD which is hypotenuse opposite sides of angle M is BC which is hypotenuse. So both non-parallel sides are equal and hypotenuse are equal. Or third, distance between two parallel lines are always equal. And AL is equal to BM. तो RHS convergence rule से both triangles are congruent. So first of all, prove its congruent. So angle L is equal to angle M 90 degree या by construction. Second, AD is equal to BC. इसका AD और इसका BC. AD equal to BC. Hypotenuse लिखो या non parallel sides are equal. In this question, non parallel sides of the trapezium are equal. And given you. और AL is equal to BM. Distance between two parallel sides. Distance between two parallel sides. Distance between आवाज नहीं आ रहा है तो इसको हम एक काम करते हैं फिर से ऑफ करके ऑन करते हैं ओके हेलो हाँ हेलो आवाज आ रही है हेलो हर्ष चलो फिर से उसको हम कंटिन्यू कर देते हैं स्टार्टिंग से बता देते हैं है ना चलिए देखिए क्वेश्चन था if the non-parallel side of a trapezium are equal prove that it is cyclic हम एक ट्रापेजियम बना दिए A B C D अभी तो आवाज क्लियर है तो A B C D is a trapezium in which AB parallel to BC opposite sides of a trapezium are parallel तो AB parallel to DC और non-parallel side AD and BC are equal. In this question, non-parallel side of a trapezium are equal.
prove that it is cyclic. आपको प्रूव करना है ए बी सी डी को साइक्लिक के लिए आप अपोजिट एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री प्रूव कर दो, या एंगल बी प्लस एंगल डी 180 प्रूव कर देते हो, तो हम ए बी सी डी इज ए साइक्लिक ट्रापेजियम कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए, एक फ्रॉम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए BC पर, और फ्रॉम बी से ड्रॉ परपेंडिकुलर BM और AC। तो राइट इन कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AL perpendicular to DC and BM perpendicular to DC. Now to prove in triangle ALD and triangle BMC को congruent प्रूव करना है, तो इसमें हम दिखा दिए एंगल L इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री, AD इक्वल टू BC given opposite sides of the trapezium, and AL is equal to BM distance between two parallel sides। तो RHS कन्वेंशन रूल से ट्रायंगल ALD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMC, अब दोनों ट्रायंगल को कन्वेंट हम प्रूव कर दिए। तो आप जब कन्वेंट प्रूव किए तो सीधी से एंगल D इक्वल टू एंगल C आप लिख सकते हो ना, इसका D और इसका C इक्वल, आप लिख दो एंगल C इक्वल टू एंगल D बाय CD। नाउ यहां डायग्राम देखिए, ये दो लाइन पैरेलल है ना, और दिस इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री। क्यों 180 होगा, कोई रीजन बताएगा? एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और AD इज ट्रांसवर्सल, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री। नाउ D के प्लेस पर आप C पुट कर सकते हो, क्योंकि C इक्वल टू D प्रूव की हो 180 डिग्री। तो पहला आपको यही प्रूव करना था कि तो एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री। सेकंड, एंगल B प्लस C इज कोइंटेरियर एंगल, एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री, यहां भी रीजन बाय को इंटीरियर एंगल से लिख सकते हो, बाय को इंटीरियर एंगल। और हमको लाना है B और D, तो C के प्लेस पर आप D पुट कर सकते हो, क्योंकि सीधी से C इक्वल टू D प्रूव की हो, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। If sum of opposite angle is 180 degree, therefore ABCD is a cyclic trapezium. Sum of opposite angle is 180 degree, therefore A, B, C and D is cyclic trapezium. साइक्लिक ट्रापेजियम। तो अभी समझ में आ गया है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट बढ़े दूसरा क्वेश्चन में। हेलो, इसमें और कौन क्वेश्चन पूछना है इस चैप्टर का? एक्सरसाइज 10.5 का और कौन क्वेश्चन पूछना है? Exercise 10.5 10.5
बोलो। एक्सरसाइज 10.5 का कौन क्वेश्चन बतावे? अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 बताए। 9 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9। हेलो, क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे? चलो ठीक है।